Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 27 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, we are going to discuss some more input devices. So here are objectives of this lecture. We will discuss the game controllers, digital camera, voice input, video input, scanners and reading devices, data collection devices, biometric input and terminals. So let's begin with the game controllers. Video games are popular for people. Different people prefer playing games. जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर्स पर भी लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं. So for playing games on the computer, you need a game controller. So a game controller is an input device that directs movements and actions of on-screen objects. And here are three different type of game controllers. We have game pads, joysticks and wheels, and we have motion sensing controllers. Now take a look at this diagram. So this is the game pad. अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल से मिलता जुलता है, जिसको हम ट्रेडिशनल वीडियो गेम्स के लिए भी यूज़ करते हैं. सो फॉर playing games on computer, we again use the game pads. So game pads fit in our hand and have a number of different buttons for governing the actions or movements of different objects. Then we have a joystick. A joystick is basically a pointing device, but we can use it for playing games as well. Then we have the गेमिंग व्हील्स. जो रेसिंग गेम्स हैं, रेसिंग गेम्स को खेलने के लिए हम ये गेमिंग व्हील्स को यूज़ करते हैं, और इसके साथ हमें पैडल्स भी मिलते हैं जिसके थ्रू हम गाड़ियों को एक्सेलरेट कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं. सिमिलरली वी हैव ए लाइट गन. जिस तरह आप जो है वो आर्मी के रिलेटेड गेम्स खेलते हैं, या जिसे हम थर्ड पर्सन गेम कहते हैं, उसमें हम इस लाइट गन को यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लेइंग गेम्स. सो दीज आर डिफरेंट गेम कंट्रोलर्स. देन वी हैव ए डिजिटल कैमरा. नाउ व्हाट इज़ ए डिजिटल कैमरा? ए डिजिटल कैमरा इज़ ए मोबाइल डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू टेक पिक्चर्स एंड स्टोर दैम डिजिटली. जैसे हमारे पास पहले एनालॉग कैमरा या फिल्म कैमरा होते थे, उनमें जब हम पिक्चर्स बनाते थे तो वो नेगेटिव्स पर पिक्चर कैप्चर करते थे और बाद में उन पिक्चर्स को डेवलप करवाना पड़ता था. बट ए डिजिटल कैमरा इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस. इट मीन्स दैट इट इज़ लाइट वेट, इट कैन फिट इनसाइड योर पॉकेट. सो वी यूज़ दिस मोबाइल डिवाइस फॉर कैप्चरिंग पिक्चर्स. नाउ ए डिजिटल कैमरा स्टोर्स पिक्चर्स digitally. Now what do we mean by digitally? We have discussed earlier that a picture is a collection of rows and columns, just like a table. We have different rows and different columns. Or you can simply say that a digital picture is a collection of pixels. Now what is a pixel? Pixel is also known as PAL or picture element. Now pixel is a small dot inside a screen. जैसे यहाँ पर आपको cells नज़र आ रहे हैं, so all these cells are actually pixels. Now what does this pixel contain? This pixel contain some values. In fact, each pixel contain some value. Now what is this value? It is the color value. So हमारे पास जो डिजिटल इमेजेस होती हैं उनमें हमारे पास पिक्सल्स होती हैं. हर पिक्सल का कोई कलर होता है और हर कलर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और इसको हम नॉर्मली RGB मॉडल से मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल आई से वी हैव RGB ऑफ 165, 111 एंड 15. So it means that our color will be formed by combining 165 units of red color, 111 units of green color and 15 units of blue color. So all the colors in this universe can be created by combining or mixing different strengths of these colors. So digital image contains pixels
एंड ईच पिक्सल कंटेन वैल्यूज़। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में इमेजेस को देखें तो उनकी आपको ये रेजोल्यूशन नज़र आएगी। सो इट मीन्स दैट वी हैव टोटल पिक्सल्स। So we have studio cameras, we have field cameras, and we have point and shoot cameras. Then we have voice input. Voice input is the process of entering input into a computer using a microphone. जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए मैं माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूँ और कंप्यूटर मेरी वॉइस को डिजिटली रिकॉर्ड कर रहा। ऑल्दो मेरी वॉइस एनालॉग है लेकिन कंप्यूटर इस वॉइस को डिजिटली स्टोर कर रहा है। नाउ वी हैव ए डिसिप्लिन दैट इज़ रिलेटेड टू वॉइस इनपुट दैट इज़ वॉइस रिकग्निशन, और यू कैन से दैट वॉइस कमांड्स। अगर आप विंडोज़ 10 को यूज़ करें तो उसमें आपको कॉर्टाना मिलता है, एप्पल मैक ओएस में एप्पल सीरी मिलता है, इसी तरह गूगल आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट मिलता है। तो जब आप अपनी वॉइस के थ्रू कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते हैं तो कंप्यूटर्स जो हैं या डिवाइसेस जो हैं इन वॉइस कमांड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करके प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको जो गूगल सर्च बार नज़र आ रही है उसके राइट साइड पर एक माइक्रोफोन है, उसको प्रेस करें और साथ ही आप बोलें मेक ए कॉल, तो गूगल वॉइस असिस्टेंट जो है आपकी इस टर्म को रिकग्नाइज़ करेगा और साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप किसे कॉल करना चाहते हैं। इसी तरह आप कहें कि सेंड ए टेक्स्ट, इसको भी वो रिकग्नाइज़ करेगा। So this is all voice input. There is a special category in voice input that is audio input. We can store speech, we can store music, and we can store sound effects. Now what is a MIDI? MIDI stands for Musical Instrument Digital Interface. MIDI stands for Musical Instrument Digital Interface. अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, इन डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ, और जब हम कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो ये डिवाइसेस डिजिटली म्यूज़िक ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम आवर इंस्ट्रूमेंट टू कंप्यूटर। इसका फ़ायदा ये होता है कि मिडी डिवाइसेस को यूज़ करने से हमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आती म्यूज़िक में, क्योंकि म्यूज़िक किसी केबल के थ्रू डिजिटली ट्रांसमिट होता है, हम उसको किसी माइक्रोफोन के ज़रिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इसलिए अगर आप कोई ओल्ड म्यूज़िक सुने तो उसमें आपको डिस्टॉर्शन वॉइस की नज़र आएगी, नॉइस मिलेगी, लेकिन जो मॉडर्न म्यूज़िक है उसमें आपको किसी भी किस्म की ग्लिचेस नहीं मिलेंगे। देन वी हैव ए वीडियो इनपुट। नाउ व्हाट इज़ अ वीडियो? ए वीडियो इज़ ए कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स that are played at a fast rate that are changed at a faster rate. So video input is the process of capturing full motion images and storing onto computer storage medium in the digital format. Just like हम अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअली वीडियो भी क्या है, वीडियो में हमारे पास फुल मोशन पिक्चर्स हैं, यानी 1 सेकंड के दौरान 40, 50, 60, 70, 80 पिक्चर्स एक कैमरा कैप्चर करता है, और उन पिक्चर्स को हम फुल मोशन की पिक्चर्स कहते हैं क्योंकि वो किसी भी मूवमेंट को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कम्प्लीटली कैप्चर करते हैं और फिर इनको हाई स्पीड पर हम प्ले आउट करते हैं। तो इसको बेसिकली हम वीडियो कहते हैं। तो हम वीडियो कैमरा को यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली वीडियो इनपुट। अब वीडियो इनपुट में एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी भी डीवी कैमरा या डिजिटल वीडियो कैमरा को यूज़ करते हैं। नाउ ए डिजिटल वीडियो कैमरा कैप्चर्स वीडियो एंड कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। वी कैन कनेक्ट दीज डिजिटल वीडियो कैमरास टू आवर कंप्यूटर एंड ट्रांसफ़र वीडियोज़ एंड इमेजेस। इसी तरह हम इनको इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम इसको शेयर कर सकते हैं। सो द हियर वी हैव ए डिजिटल वीडियो कैमरा। For video input we can use a web camera as well. We can use a web camera for capturing videos and images. We can send attachments, video attachments or with it or picture attachments. We can add live images to instant messaging, जैसे हम WhatsApp पे images
कैप्चर करके सेंड कर सकते हैं। इसी तरह हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। तो वेब कैम जो है आपको एक्सटर्नल फॉर्मेट में भी मिलता है, लेकिन लैपटॉप्स के अंदर जो है वो बिल्ट इन वेब कैम होता है, जिसे हम माउंटेड वेब कैम कहते हैं, जो टॉप ऑफ द लैपटॉप माउंटेड नज़र आता है। सो वेब कैम की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ए वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ ए मीटिंग बिटवीन 2 और मोर जियोग्राफिकली सेपरेटेड पीपल। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है इसमें हम वीडियो मीटिंग करेंगे, हमारी विजुअल्स भी जा रही होंगी, ऑडियो भी जा रही होंगी, लेकिन इस वीडियो के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो किसी एक प्लेस पर नहीं होंगे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी यूज़ गूगल मीट, वी यूज़ जूम। सो इसके थ्रू भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। देन वी हैव स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस। वी हैव फ्लैटबेड स्कैनर, वी हैव पेन और हैंड हेल्ड स्कैनर, वी हैव शीट बेड स्कैनर और ड्रम scanner. Now what is a flatbed scanner? A flatbed scanner is used to scan our documents and convert it into picture format or digital format. So a flatbed scanner looks like this. We have a tray that has a glass. So जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन करना है उसको हम इस ग्लास के ऊपर प्लेस करते हैं, उसके बाद इसकी लिड को क्लोज करते हैं और स्कैनिंग के प्रोसेस को बिगिन कर देते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, स्कैनर जो है वो अपने लैंप के थ्रू इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इस वायर के थ्रू कंप्यूटर्स में सेंड कर देता है। तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर हो जाते हैं। Now here we have different optical reading devices. We have optical character recognition, we have optical mark recognition, and then we have barcode or a QR code readers. Similarly, there are other reading devices as well, just like magnetic ink character recognition, RFID, and magnetic strip card reader. Now next we are going to discuss the optical character recognition. What is optical character recognition? Optical character recognition involves reading characters from ordinary documents. इसकी जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो मॉडर्न व्हीकल नंबर प्लेट्स हैं। अगर आप आजकल की मॉडर्न बाइक्स या गाड़ियों को देखें तो उन पर जो नंबर प्लेट्स हैं वो स्पेसिफिक कलर की हैं, उन पे जो फॉन्ट्स लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी स्पेसिफिक डिज़ाइन का है, क्योंकि इंटेंशन क्या है कि एक कंसिस्टेंट टेक्स्ट हो, उस टेक्स्ट को हम कैमरा से इजीली रीड आउट कर सकें। सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यूजेस कैमरास टू रीड आउट द टेक्स्ट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट और फ्रॉम ए बैनर और फ्रॉम ए बोर्ड। सो इसमें आपको राइटिंग का स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो यूज़ करना पड़ता है। देन वी हैव OMR, optical mark recognition. Optical mark recognition reads hand drawn marks such as small circles or rectangles. जिस तरह आप NTS की बात करें, GAT की बात करें, GRE की बात करें, तो उसमें आप MCQs को फिल करने के लिए टिक नहीं यूज़ करते, बल्कि आपको एक बबल शीट मिल जाती है, उस बबल शीट पर सर्कल्स होते हैं और आपने उन सर्कल्स को फिल करना होता है कम्प्लीटली। तो OMR डिवाइसेस क्या करती हैं, आपके इन फील्ड सर्कल्स को डिटेक्ट करती हैं और उसके पैटर्न को मैच करती हैं, जिसकी बेस पे वो आंसर्स डिसाइड करती हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट। सो अगर आप इनकन्सिस्टेंटली किसी भी सर्कल को फिल करते हैं तो एक्चुअली जो OMR डिवाइस है वो स्कैन तो कर लेती है लेकिन उस पैटर्न को मैच नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आप डबल सर्कल्स फिल करते हैं तो फिर भी वो पैटर्न मैच नहीं होता, जिसकी वजह से आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। Then we have a barcode or a QR code reader. Different products have barcode attached to them. जैसे ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको डिफरेंट लाइंस नज़र आ रही हैं और एक नंबर लिखा नज़र आ रहा है। So this is basically barcode. So at different point of sale terminals, barcode readers are used to scan products. यानी अगर आप किसी मल्टीनेशनल स्टोर पे जैसे मेट्रो वगैरह पर जाएं या किसी सुपर स्टोर पर जाएं तो वहाँ पर जो बिलिंग है वो मैनुअल नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होती है, जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहते हैं। अब उस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर एक कैशियर होता है, वहाँ पर एक कंप्यूटर होता है और उसके साथ एक डिवाइस अटैच होती है जो रेड कलर लाइट प्रोड्यूस कर देती है। अब एक्चुअली क्या होता है,
जैसे ही आप शॉपिंग करके अपनी शॉपिंग बास्केट को लेके जाते हैं तो कैशियर जो है वो बारी बारी आपकी प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है। तो जब वो प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है वो एक्चुअली उसके नेम को स्कैन नहीं कर रहा, ना उस बॉक्स को स्कैन कर रहा, बल्कि वो उसके बार कोड को स्कैन कर रहा। सो उस बार कोड के रिलेटेड उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, सब कुछ जो है वो किसी डेटाबेस में स्टोर है। सो उसके थ्रू जो है वो ईजीली बिलिंग हो जाती है, बिलिंग जनरेट हो जाती है। सो ए बार कोड स्कैनर यूजेस लेज़र बीम्स टू रीड द बार कोड लाइन्स। सिमिलरली ये आपको सेकंड जो नज़र आ रहा है ये QR कोड है। जैसे अगर हमने व्हाट्सएप को वेब पर यूज़ करना है या अपने कंप्यूटर पर यूज़ करना है तो उसके लिए हम QR कोड यूज़ करते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स पे पेमेंट करने के लिए QR कोड का ऑप्शन है। बहुत सी जगहों पर हम QR कोड को भी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी। देन वी हैव RFID. नाउ RFID इज़ a reading device, but it is not an optical reading device. RFID stands for radio frequency identification. It uses radio signals to communicate with a tag placed in or attached to an object. आप डिफरेंट सुपर स्टोर्स पर जाएं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं तो वहाँ पर हर प्रोडक्ट के साथ RFID टैग अटैच होता है। तो अगर आप देखें तो जो उन स्टोर्स के गेट होते हैं उस पर आपको 2 बार्स नज़र आती हैं जो एक्चुअली RFID को स्कैन करती हैं, जो बेसिकली RFID रीडर्स हैं। सो एन RFID रीडर्स कैन रीड द इंफॉर्मेशन ऑन द टैग विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। सो RFID कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़ फॉर ट्रैकिंग टाइम्स ऑफ रनर्स इन ए मैराथन। जैसे कोई रेस है, जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करें तो फिनिश लाइन पे आप RFID लगा सकते हैं कि जैसे ही एक पर्सन जो है वो फिनिश लाइन क्रॉस करे तो RFID साथ ही उसे डिटेक्ट कर ले और उसका टाइम नोट कर ले। तो इससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी तरह RFID को आप यूज़ कर सकते हैं सोल्जर्स की ट्रैकिंग के लिए। एम्प्लॉई ड्रेसेस को आप स्कैन करने के लिए RFID यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एयरलाइन सिस्टम में बैगेज को आइडेंटिफाई करने के लिए RFID यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इन स्टोर्स में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए RFID यूज़ हो सकता है, जो आपकी इन्वेंट्री को काउंट करके रखे, ताकि अगर कोई पर्सन थेफ्ट की कोशिश भी करे तो RFID साथ ही उसको डिटेक्ट कर ले और ट्रैक कर ले और साथ ही आपको नोटिफाई कर दे कि कोई चीज़ जो है उसकी थेफ्ट अटैम्प्ट हुई। इसी तरह वी कैन यूज़ द RFID for checking out library books. Even we can use RFID for student attendance as well. स्टूडेंट स्कूल में गेट है, आप गेट पे RFID रीडर लगा दें और हर स्टूडेंट को एक RFID चिप असाइन कर दें उसके स्टूडेंट कार्ड में। अब जैसे ही वो स्टूडेंट गेट क्रॉस करेगा RFID रीडर उस चिप को रीड करेगा और साथ ही स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क कर सकता है। सो दिस इज़ बेसिकली द पर्पज़ ऑफ RFID. देन वी हैव मैग्नेटिक कार्ड रीडर्स। जिस तरह हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, उनकी बैक साइड पर आपको एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप नज़र आती है। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर्स आर यूज्ड टू रीड द इंफॉर्मेशन दैट इज़ मैग्नेटिकली स्टोर्ड ऑन दिस स्ट्रिप। बैंक के कोई भी ATM कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उस पर ही आपको मिलते हैं। फिर एंटरटेनमेंट कार्ड्स हैं, किसी रेस्टोरेंट के या किसी होटल के आपको मेंबरशिप कार्ड्स मिलते हैं, उसमें ये ऑप्शन आपको मिल सकती है। देन वी हैव MICR. नाउ MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक. So MICR reader converts MICR characters into a form that is processable by a computer or that a computer can process. जिस तरह आप किसी भी चेक बुक का चेक देखें तो उसके बॉटम पे आपको स्पेसिफिक इंक से लिखे स्पेसिफिक पैटर्न के कैरेक्टर्स नज़र आते हैं. सो दीज कैरेक्टर्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइज्ड इंक. तो अगर आप इस चेक को MICR रीडर के थ्रू पास ऑन करें तो आप उससे डिफरेंट
इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बैंक राउटिंग नंबर भी नज़र आ रहा है, अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है, चेक नंबर नज़र आ रहा है और साथ में चेक अमाउंट भी नज़र आ रही। सो इट इज़ अ वे टू डिजिटाइज द मैनुअल वर्क, यानी आप क्विकली अपने इस मैनुअल वर्क को डिजिटाइज कर सकते हैं MICR के थ्रू, बजाय इसके कि आप ईच एंड इंडिविजुअल चेक को जो है वो पोस्ट करें, आप उसकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर के थ्रू प्रोसेस करें ताकि वो क्विकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेसेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। देन वी हैव डाटा कलेक्शन डिवाइसेस। नाउ डाटा कलेक्शन डिवाइसेस obtain data directly at the location where the transaction or event takes place। जैसे अगर आप पार्किंग में जाएं तो पार्किंग में आपको ये हैंड हेल्ड डिवाइस नज़र आएगी जिसके थ्रू वो आपको टिकट प्रिंट करके देंगे। इसी तरह बाज़ रेस्टोरेंट्स में ये डिवाइसेस नज़र आएंगी कि आपकी फ़ीडबैक गेट करने के लिए या ऑर्डर गेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस को। इसी तरह इन्वेंट्री को चेक करने के लिए इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। सो दीज आर बेसिकली डाटा कलेक्शन डिवाइसेस। ये टच स्क्रीन भी होते हैं और बटन प्रोसेस करने वाले भी होते हैं। इसी तरह रिसेंटली जो मीटर रीडर्स थे वो भी डाटा कलेक्शन डिवाइसेस को यूज़ करते थे मीटर्स को रीड करने के लिए, लेकिन बाद में अब उस ट्रेंड को कन्वर्ट कर दिया गया स्मार्टफोन पे। स्मार्टफोन की ऐप बन गई, उसके थ्रू मीटर्स रीड करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब SNGPL वाले जो थे ये डाटा कलेक्शन डिवाइसेस यूज़ करते थे। नेक्स्ट वी हैव द बायोमेट्रिक इनपुट। नाउ ए बायोमेट्रिक इनपुट ऑथेंटिकेट्स ए पर्सनस आइडेंटिटी बाय वेरीफाइंग ए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। सो सबसे ज़्यादा सिक्योर जो है वो बायोमेट्रिक इनपुट है। ये किसी भी पर्सन के ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स या बायोमेट्रिक पैरामीटर्स को स्कैन करता है और उसकी बेस पे डिसाइड करता है कि पर्सन जो है वो लेजिटिमेट है या ऑथोराइज्ड है या नहीं। सो सबसे बेसिक इसमें फिंगरप्रिंट रीडर आता है। इन लैपटॉप्स वी हैव फिंगरप्रिंट रीडर, इन आवर मोबाइल फोन्स वी हैव फिंगरप्रिंट रीडर दैट recognizes our fingers and opens log if it correctly recognize our finger। Then we have face recognition system, जो हम फेस लॉक की बात करते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पे फेस लॉक लगा लेते हैं। सो दैट इज़ फेस रिकग्निशन सिस्टम। सिमिलरली वी हैव वॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम, यानी जब सिस्टम ऑन हो तो हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड्स बोलने पड़े, वो हमारी वॉइस से हमें गेट करे कि ये पर्सन जो है ये वही है या नहीं। सो दिस इज़ आल्सो बायोमेट्रिक सिस्टम। सिमिलरली वी हैव आयर्स रिकग्निशन सिस्टम, रेटिनल रिकग्निशन सिस्टम और हार्ट बीट स्कैन वेरिफिकेशन सिस्टम और सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम। सो ये डिफरेंट जो हैं ये बायोमेट्रिक इनपुट के मेथड्स हैं। जैसे आप ये देखिए ये फिंगरप्रिंट रीडर है, ये आयरस रिकग्निशन सिस्टम है, ये हैंड ज्योमेट्री सिस्टम है। सो ये सारे बायोमेट्रिक सिस्टम हैं, ये एक्यूरेट भी हैं और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से भी बचाते हैं। अक्सर जगह पर ये अटेंडेंस मार्किंग के लिए यूज़ होते हैं। देन वी हैव टर्मिनल्स। नाउ व्हाट इज़ ए टर्मिनल? ए टर्मिनल इज़ ए कंप्यूटर और ए डिवाइस that allows users to send data or receive information from a host computer। यानी टर्मिनल्स या डम टर्मिनल्स को आप यूज़ करते हैं हमेशा होस्ट कंप्यूटर के साथ। जैसे बैंक में ATM मशीन्स हैं। अब ATM मशीन बजाते खुद कंप्यूटर नहीं है। ATM मशीन इज़ ए डम टर्मिनल। ऑल द रिकॉर्ड इज़ स्टोर्ड इन योर बैंक सर्वर। सो वेन एवर यू इंसर्ट योर ATM कार्ड, the machine verifies your card with the help of the bank server। If the banking server is down, your ATM machine cannot recognize your card। इसी तरह जब आप उसको पिन कोड प्रोवाइड करते हैं, आप उसको अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन आप कंडक्ट करवाते हैं ये सारी की सारी बैंक के होस्ट कंप्यूटर के थ्रू होती। सो ATM का बेसिक काम क्या रह जाता है कि आप उसको कार्ड प्रोवाइड करें, आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उससे आप कार्ड रिसीव करें, पेमेंट रिसीव करें और रिसीप्ट रिसीव करें। सो बेसिकली ATM मशीन इज़ ए डम टर्मिनल दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन। हाउएवर द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द
होस्ट कंप्यूटर। इसी तरह अगर आप मेट्रो स्टोर पर जाएं तो आपको वहाँ पर POS टर्मिनल नज़र आएगा। नाउ व्हाट इज़ POS टर्मिनल? POS टर्मिनल स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, दैट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द परचेजेस, दैट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग ऑटोमेटिक बिल्स एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर अपडेटिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है कि एक स्टोर के पास जितनी भी किसी चीज़ की क्वांटिटी है वो बेसिकली इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री अपडेट का मतलब क्या है कि जैसे ही आप कोई चीज़ सेल करेंगे वो आपके स्टॉक में से सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं, आपने जितनी क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ की होती हैं उतनी स्टोर की इन्वेंट्री से माइनस हो जाती हैं। Now here we have a difference between dumb terminal and intelligent terminal. A dumb terminal can only perform input, output and communication. There is no storage capability or no processing capability. For example, ATM, credit card, swapping machine. Now an intelligent terminal has all the functions like input, output, processing, storage, just like our smartphones, personal computers and लैपटॉप्स। इसी तरह अगर आप बैंक्स में जाएं तो जो आपको कैशियर नज़र आएगा, कैशियर जो है वो एक कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा। नाउ इट्स कंप्यूटर इज़ बिहेविंग एज एन इंटेलिजेंट टर्मिनल, क्योंकि वो प्रोसेस भी कर सकता है, वो स्टोर भी कर सकता है, इनपुट आउटपुट एंड कम्युनिकेशन भी कर सकता है। लेकिन जो ATM मशीन है वो सिर्फ इनपुट आउटपुट एंड कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकती है, उसमें स्टोरेज की कैपेबिलिटी नहीं और प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी नहीं है।